Welcome all in economics class. Today we are starting our chapter 8 of microeconomics, concepts of cost. As you all know, a firm or a producer uses various inputs to produce goods and services. So a firm has to make payments for these inputs. So payments, or we can say the expenditure incurred by a firm or a producer on the factor as well as non-factor inputs is called cost. So, factor inputs, we all know that land, labor, capital, entrepreneur. These four are the factor inputs, and raw material and electricity, fuel, energy, these are the non-factor inputs which a firm use for the production. So here cost is the summation of the explicit cost plus implicit cost. Now what is explicit cost? Explicit cost is the actual money expenditure of a firm on purchasing of goods or hiring of factor services and non-factor inputs. When a firm or producer do expenditure on the purchase of inputs from the market, we call it explicit cost. मतलब outsiders को जब payments किया जा रहा है, cash payments to the outsiders for their services, then it is called the explicit cost. For example, rent of the building, rent of the land, electricity का हम बिल पे कर रहे हैं, वेजेस वी आर गिविंग टू द लेबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दीज आर द सम पेमेंट्स टू द आउटसाइडर्स. सो दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट is the cost of estimated value of inputs supplied by the owner of the firm himself, or we can say that cost of self supplied factors. जब प्रोड्यूसर खुद अपने फैक्टर्स को यूज़ में ले रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो हम उसकी मार्केट वैल्यू मेज़र करके उसको हम एज अ कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट. मीन्स इट इज़ द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर्स ओन्ड बाय द प्रोड्यूसर और बाय द फर्म. वी कैन से एग्जाम्पल ऑफ इम्प्यूटेड रेंट इज़ द फॉर एग्जाम्पल एक प्रोड्यूसर ने अपनी सेल्फ लैंड और सेल्फ बिल्डिंग को यूज़ में लिया है अपनी प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करने में. तो उसकी खुद की बिल्डिंग थी, उसका खुद का एरिया था. तो व्हाट वी डू, वी मेज़र द रेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. मार्केट वैल्यू हम उसकी मालूम करके हम उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट में ऐड करेंगे. तो दिस इज़ द इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स सेल्फ सप्लाइड फैक्टर. तो दिस इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अपनी कैपिटल जब वो यूज़ में ले रहा है तो हम उसकी मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट करके हम उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे. रेंट ऑफ ओन लैंड, ओन बिल्डिंग व्हेन प्रोड्यूसर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड द इम्प्लिसिट कॉस्ट. सो कॉस्ट इज़ द total of the implicit cost plus explicit cost. Now next is the some types of cost. Selling cost. Selling cost क्या होता है? It is the expenditure incurred by producer to promote sale of commodity. जब प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने के लिए, अपने प्रमोट करने के लिए एक्सपेंडिचर करता है, then that kind of expenditure is called the selling cost. For example, when producer do expenditure on the advertisements. Advertisements पर expenditure जो किया जाता है एक फर्म कर रही है या एक प्रोड्यूसर कर रहा है, that is called the selling cost. Similarly, the second type of cost is the production cost. Production cost refer to the expenditure incurred by a producer on the inputs for producing a given level of output. तो जितने भी inputs producer यूज़ में ले रहा है, so it includes explicit cost plus implicit cost. दोनों cost को जब हम add कर देंगे, we will get the production cost. Third kind of cost is the opportunity cost that we all know. It is the total sacrifice made by the firm or the producer.
टोटल सेक्रीफाइस जो भी किया जा रहा है, एक फर्म जो भी टोटल सेक्रीफाइस कर रही है, जो भी प्रोड्यूसर जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो हम इसको जब मेज़र करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, तो हम इसको एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों को इसमें हम ऐड करते हैं. दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ नेक्स्ट इज़ द शॉर्ट रन cost. In our syllabus, as we have read in the last chapter also, in the production short run we will study in the cost also. So short run cost and shapes of short run cost curves we will study in this chapter. This chapter focus on this. So short run cost, short run is the short period of time in which we all know that there are two kinds of factors work in the production process. First is the fixed cost and second is the variable cost. दो तरह के फैक्टर्स काम कर रहे हैं शॉर्ट रन में. शॉर्ट रन इज द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन विच अ प्रोड्यूसर कैन नॉट चेंज द all the factors of production for increasing the output. तो यहाँ पर हमारे दो तरह के फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड द वेरिएबल फैक्टर्स. फिक्स्ड फैक्टर्स पर जितना भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट. एंड वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाने के लिए वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर एक प्रोड्यूसर या एक फर्म कर रही है दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट. तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट दिस. एज वी ऑल नो फिक्स्ड फैक्टर्स आर फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन. तो फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. एक बार एक प्रोड्यूसर ने इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एस्टेब्लिश कर दिया है, सेटअप कर दिया है, लैंड खरीद ली, बिल्डिंग सेटअप कर दी, बिल्डिंग उसमें मशीन सेटअप कर दी, दैट इज़ द फिक्स्ड फैक्टर्स. और उन पर जितना भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है, डू नॉट चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड. ये खर्चा केवल फिक्स्ड वेरिएबल्स पर किया जा रहा है, लाइक रेंट ऑफ द लैंड, बिल्डिंग, इंटरेस्ट. दीज आर द फिक्स्ड फैक्टर विच एंड फिक्स्ड कॉस्ट विच प्रोड्यूसर incurred. And so our total fixed cost is fixed for different level of output. Output हमारा you can see in the schedule. A schedule is given here. Unit of commodity continuously increasing. प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5. लेकिन हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर का खर्चा है ये, वो एक बार किया जा रहा है, दैट इज़ फिक्स्ड. 60, 60, 60, 60. So total fixed cost is the fixed. And as we know total fixed cost plus total variable cost is equals to total cost होती है. तो हमें अगर total fixed cost फाइंड आउट करनी है देन व्हाट वी डू, हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो. फॉर्मूला इज़ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है TFC इज इक्वल्स टू TC माइनस TVC. तो हम TC में से TVC जब हम माइनस कर देंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे, देन वी विल गेट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व है दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, 60 पर हमारा स्ट्रेट लाइन कर्व है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का. एंड इट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट, so the curve is parallel to the x-axis, horizontal curve parallel to the x-axis. This is about the total fixed cost. Now next is the total variable cost. As we all know variable cost जो है दिस इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स. वेरिएबल फैक्टर्स हम चेंज कर सकते हैं. एक प्रोड्यूसर शॉर्ट रन में केवल वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है. तो वेरिएबल फैक्टर्स कंटिन्यूसली चेंज होंगे इन द शॉर्ट रन. तो वेरिएबल कॉस्ट भी कंटिन्यूसली चेंज होगी. फॉर्मूला ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट में से जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, देन वी विल गेट द वेरिएबल कॉस्ट.
एंड विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को यूज़ में लेंगे प्रोडक्शन में. फॉर एग्जाम्पल wages of casual labor, payment for raw materials, these are the kind of the variable cost. Due to this, as production increases, total variable cost also increases. Our variable cost curve, you can see in the figure, it is the inversely S shaped curve in the starting. It is inversely S shaped curve due to the law of variable proportion. हमने law of variable proportion पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि in the starting when variable factor हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्शन हमें इंक्रीजिंग रेट से मिल रहा है. दैट्स वाई कॉस्ट क्या हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है. तो स्टार्टिंग में टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज़ लोअर कॉस्ट होने के कारण हमारा कर्व जो है ये you can see it is concave shaped curve, and after become constant in after beyond the point P it become convex shaped and increases with the increase in production. क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज किए जा रहे हैं टोटल प्रोडक्शन थर्ड स्टेज में नेगेटिव हो जाता है, फॉल होने लगता है और मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाता है. ड्यू टू विच टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होने लगती है. इन द स्टार्टिंग इंक्रीजिंग की स्पीड कम है वेरिएबल कॉस्ट की, बट आफ्टर सम टाइम इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द आउटपुट. तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. यू कैन सी इन द शेड्यूल ऑल्सो एज quantity increases total variable cost is continuously increasing. So this is about the total variable cost and total fixed cost. Now total cost is the summation of total fixed cost and total variable cost. When we make the curve of total cost, you can see TFC is the fixed cost, ये parallel होता है x axis के, and TVC starts from origin. We already have seen TVC कर्व हमारा ओरिजिन से स्टार्ट है क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो ही होती है, तो इसलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है. बट इट इज़ पैरेलल टू टोटल कॉस्ट कर्व. टोटल कॉस्ट कर्व हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द पॉइंट वेयर TFC इज स्टार्टेड, and the gap between TC and TVC is equal because it shows the total fixed cost. The formula of total cost is TC is equals to TFC plus TVC, and so TFC is fixed, and due to which the gap between TC and TVC is equal. The TVC curve is inversely S-shaped curve, TFC curve is horizontal line parallel to x-axis, and TC is the aggregate of TFC and TVC. TC curve is also inversely S-shaped curve which starts from the level of total fixed cost curve. इस यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है TFC से, बिकॉज इट इज़ due to the law of variable proportion.